هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ولما اور جب توجہ تلقاء مدینہ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل تو انہوں نے کہا مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ بھلما اور جب ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونہم رأتین تذودان جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر بہت سارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دیکھا کہ اس سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا ما خطبکما تم کیا چاہتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو دو فیمیلز یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے اور ہمارے والد بہت بڑے آدمی ہیں۔ ابونا اور ہمارے بابا یا ہمارے والد شیخ کبیر بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے؟ ایک بہت پیاری انہوں نے دعا کی، فقال بس انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلتا آپ سے خیر کی بھلائی مانگتا ہوں، لما انزلتا الیہ من خیر فقیر میرے پروردگار جو کوئی بہتری مجھ تک آئے تو مجھ پر نازل کر دے اور میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں پہ یہ جو دعا کی جا رہی ہے باقی ہم ٹرانسلیشن یا باقی جو تفسیر ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے یہ جو یہاں پہ ایک دعا آئی ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اب یہ جو میرے پریویس اسٹوڈنٹس ہیں یا جو شارٹ کورسز کرتے رہتے ہیں، فزیکل شارٹ کورسز بھی کرتے رہتے ہیں، کہ یہ اس دعا پہ میں کتنا زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ آپ نے یہ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کوئی بہتری تو میرے اوپر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے بالکل بے سر و سامان تھے، نہ ان کے پاس جاب تھی، نہ ان کے پاس گھر میں رہنے کے لیے گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور فیسلٹی تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایون ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے جوتے ختم ہو گئے تھے، اتنا عرصہ چلتے مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے، درختوں کے پتے کھاتے رہنے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، کھانے کے لیے تو کچھ ملتا نہیں تھا، چلتے چلتے پہنچے تھے مدین میں۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تم مجھ پہ بھلائی نازل فرما میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی عطا کیا، اچھی جاب بھی عطا کی اور اچھی جگہ پہ ان کا رشتہ ہو گیا۔ ان کا رشتہ کہاں پہ ہوا؟ ان کو کہاں سے بیوی ملی؟ زوجہ ان کو کہاں سے ملی؟ حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا۔ اس سے اچھا رشتہ کہاں پہ ہو سکتا تھا ان کا؟ اتنا بہترین ان کا رشتہ ہوا، مینیجر کی ان کو جاب ملی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے یا بکریوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، سنبھالنے کے لیے ان کو ایک مینیجر کی ضرورت تھی جو ان کا سارا سسٹم مینیج کر سکے۔ تو حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने पास एज़ अ मैनेजर रख लिया और उनकी अपनी बेटी से शादी भी करा दी। रहने के लिए उनके पास घर मौजूद नहीं था, रहने के लिए उनको ठिकाना भी मिल गया, घर भी मिल गया। इसलिए दुनिया की हर भलाई के लिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए, साथ में चाहते हैं कि घर भी बहुत अच्छा हो, साथ में चाहते हैं कि अच्छी जॉब हो और जो उनकी अर्निंग सोर्सेज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देन आपको चाहिए कि आप ये दुआ कभी भी स्किप नहीं करें। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी अर्निंग जो है, जो आपका रिज़्क है, उसमें अल्लाह बहुत बरकत डाल देगा। इस दुआ की बरकत से अल्लाह रिज़्क में बरकत डाल देगा, बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता होगा और तीसरा ये है घर मिलेगा अच्छा, अच्छी जगह रिश्ता होगा और उनके जो अर्निंग सोर्सेज़ हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल देगा। इससे 3 फ़ायदे हासिल होंगे, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इससे 3 फ़ायदे हासिल हुए। अब ज़रूरी नहीं है कि इससे 3 फ़ायदे ही हासिल हों। इससे बहुत ये दुआ बहुत अच्छी है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और मोस्टली जो मुफ़स्सिरीन हैं या उलमा किराम हैं, वो इसके अबाउट कहते हैं कि ये ऐसी दुआ है, इसको जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दीन और दुनिया की दोनों भलाइयाँ, कामयाबियाँ और बरकतें अता फरमाता है। नोट डाउन कर लें, आयत नंबर 24 है सूरतुल कसस की आयत नंबर 24 का सेकंड लास्ट पार्ट जो है, ठीक है? ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बेहतरीन दुआ है, ये दुआ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और आपने ये दुआ भी मेमोराइज़ कर लेनी है। बल्कि अभी जो ग्रुप है, उसमें मैंने शेयर कर दिया, तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम चलते हैं बाकी तफ़सीर की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम है जब वहाँ पे पहुँचे, मदियन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कुआँ है जहाँ पे बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 औरतें खड़ी हैं जो अपने जानवरों को रोक के खड़ी हुई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ऐसा हमदर्दी उनसे पूछा कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, आप अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही? तो उन्होंने कहा कि हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर निकल नहीं जाते, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। और वो कौन बच्चियाँ थीं? वो कौन लड़कियाँ थीं? वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता रही थी कि हम सिर्फ़ गर्ल्स हैं, हम सिर्फ़ बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और हम खुद ही अपनी ये जो हैं, बकरियाँ हैं, इनको पानी पिलाने के लिए आती हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी उनको पिलाना स्टार्ट किया, अब ये है कि एक जो वक़्त का पैगंबर होता है, लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उन्होंने डोल को पकड़ा और वो डोल एक बहुत बड़ा लाइक ये कह लें कि कंटेनर टाइप था कि उसको जब पकड़ के पानी बाहर निकालते थे, 5 से 6 आदमी उसको पकड़ के डोल को बाहर निकालते थे, जिससे सारे जानवर पानी पी लिया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उन्होंने डोल को एक हाथ से घुमाया और फ़ौरन से डोल बाहर आ गया। तमाम लोग इतने हैरान हुए, कहाँ वो पीछे नहीं हट रहे थे कि मैंने पहले पानी पिलाना है, मेरी बारी है, मैंने अपनी बकरियों को पहले पानी पिलाना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतना पावरफुल आदमी है, जिसने एक ही झटके से पानी बाहर निकाल के दे दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इम्प्रेस हो गए। फ़ौरन से पीछे हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बच्चियाँ आई हुई थीं, उनकी दोनों बकरियों को पानी पिलाया और वो अपने घर चली गईं। अब जो घर गई हैं और उन्होंने जाके सारी स्टोरी अपने वालिद साहब यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बताई कि इस तरह से हुआ है। तो वो सारी डिटेल जो है वो आगे हम डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह। अगरचे किसी नेकी का इनाम वसूल करने के लिए दान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैरत और शराफ़त के खिलाफ था। अब वो बच्चियाँ जो हैं उनके पास वापस आई और उन्होंने आके कहा कि हमारे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं, वो ज़ईफ़ हैं, वो खुद नहीं आ सकते। तो अगरचे किसी भी इनाम के हसूल के लिए जाना ये कोई नेकी नहीं है और किसी नेकी के इनाम के हसूल के लिए जाना भी नहीं चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैरत और शराफ़त के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि आपकी तरफ से जो भी भलाई आएगी मैं उसका मोहताज हूँ और इस खातून की दावत से एक रास्ता ऐसा पैदा हुआ था इस बस्ती में किसी बुज़ुर्ग से जान-पहचान हो जाएगी। और दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी को भेजने से उनकी शराफ़त और बुज़ुर्गी ज़ाहिर हो रही थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कि वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए उन्होंने अपनी बेटियों को भेज दिया था। इसलिए अ, उन्होंने फ़ौरन से कहा कि अगर मुझे बच्चियाँ बुलाने के लिए आ रही हैं तो मुझे फ़ौरन जाना चाहिए। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जैसे ही
वो बच्चियाँ बुलाने के लिए आईं, तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। एक ये भी था कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ख़्याल किया कि इस दावत को अगर मैं रद्द कर देता हूँ, मैं इन बच्चियों से कह देता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, तो नाशुक्री होगी और जो मैं अल्लाह ताला से एक दुआ कर चुका हूँ और हो सकता है कि इनसे अगर इनके मैं वालिद साहब से मिल लूँ, जो कि नाबीना हैं, तो मुझे कोई मुफ़ीद मशवरा मिल जाए या मुझे कोई काम-शाम मिल जाए। चुनांचे दावत कबूल करके इनके पास चले गए। लेकिन इब्न असाकिर की एक रवायत जिसमें हज़रत अबू हाज़िम रहमतुल्लाह तआला से ये तफ़सील मनक़ूल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने खाना पेश किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों? क्या आपको भूख नहीं है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भूख तो है लेकिन मुझे अंदेशा है ये खाना मेरे उस अमल का मुआवज़ा ना बन जाए कि मैंने बकरियों को पानी पिलाया था। और हम ऐसे लोग हैं जो काम आखिरत की खातिर करें, उसके मुआवज़े में कोई पूरी ज़मीन सोने से भरकर भी दे दे, तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे। Azan is coming. We will just continue. तो हज़रत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हम कोई नेक काम करते हैं, उसका मुआवज़ा नहीं लेते, अगर आप हमें सारी ज़मीन सोने से भरकर भी दे दें, तो मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी और मेरे आबा-ओ-अजदाद की ये आदत रही है कि हम मेहमान की मेहमान नवाज़ी करते हैं। हम आपको एज़ अ गेस्ट ले रहे हैं और हम आपकी मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ खाना खाने बैठ गए। इससे ये मालूम होता है कि खातून ने जो कहा कि मेरे वालिद आपको इसलिए बुला रहे हैं कि आपको इस नेकी का इनाम देंगे, तो इन्होंने अपने ख़्याल के मुताबिक कह दिया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं फ़रमाए थे, वल्लाहु अअलम। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا थोड़ी देर देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्मो हया के साथ चलती हुई आई और कहने लगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दे अजरमा सक़ीत लना ताकि आपको इस बात का इनाम दे जो आपने हमारे जानवरों को हमारी खातिर पानी पिलाया है। फलम्मा फिर जब जाअहु वक़स्स अलैहि अलक़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। चनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुँचे, यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, तो उनको सारी सरगश्त या सारी स्टोरी सुनाई, तो इन्होंने कहा कि कोई अंदेशा न करो, तुम ज़ालिम लोगों से बचकर आए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सारी स्टोरी बताई कि इस तरह से ये हुआ है और मैं इस तरह से वहाँ से फ़िरौन के चुंगल से भाग निकला हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो उन्होंने क्या फ़रमाया नजौता मिनल क़ौमि ज़ालिमीन इसमें कोई शक नहीं है कि आप ज़ालिम कौम से बचकर निकल आए हैं। कोई अंदेशा नहीं है, तुम ज़ालिम लोगों से बचकर आए हो। फिर उसके बाद क़ालत कहा का क़ालत बोली या कहा इहदाहुमा इन दोनों औरतों में से एक औरत ने कहा قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين इन दोनों औरतों में से अब जो उनकी दो बेटियां थी उनमें से एक औरत ने कहा अब्बा जान आप उनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए आप किसी से उजरत पर काम लें तो इसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो अमानतदार भी हो तो ये कविजुन ताकतवर भी हैं इनमें बहुत ज्यादा ताकत है क्योंकि वो देख चुकी थी कि किस तरीके से उन्होंने वो सारा कंटेनर पकड़ के ऊपर खींचा था पानी का और पानी पिलाया था अमीन ये अमानतदार भी हैं उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि ये बहुत मजबूत भी हैं बहुत ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी हैं। आप देख रहे थे कि एक मैनेजर की तलाश में थे बकरियों के लिए। अगर आपको मैनेजर चाहिए तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप इनको अपने पास काम पर रख लीजिए, मैनेजर की पोस्ट पे इनको रख लीजिए और इनसे बेहतरीन और ये बेहतरीन शख्स है जो ताकतवर भी है और अमानतदार भी है।
अब उनके वालिद साहब ने कहा क़ाल इन्होंने कहा इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातानि अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। उनके बाप ने कहा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक से आपका निकाह कर दूँ। अभी जो हमने पहले बात डिस्कस की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, कि ऐ मेरे रब, अगर आपकी तरफ से कोई भलाई और खैर मेरे तक पहुँच रही है तो मैं उसका मोहताज हूँ, आप मुझे खैर और भलाई अता कीजिए। और उससे उनको 3 अल्लाह ताला की तरफ से फैसिलिटीज़ मिली, 3 अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिले। एक उनको जॉब मिल गई, मैनेजर की जॉब मिल गई, दूसरा उनको घर मिल गया, तीसरा उनकी वक़्त के पैगंबर यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से ही शादी हो गई। तो उनके बाप ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से किसी एक से आपका निकाह कर दूँ। इह्दा इब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक के साथ आपका निकाह कर दूँ। बशर्ते कि फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक। उन्होंने कहा लेकिन इसके लिए कंडीशन मैं लगा रहा हूँ। कंडीशन ये होगी कि आपको यहाँ पे मेरे पास 10 साल काम करना होगा। फ़इन अतममत अशरन, आपको 10 साल यहाँ पे मेरे पास काम करना होगा। फ़मिन इंदिक, मेरे पास रहना होगा। वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। अब फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो, तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा कि अगर तुम मेरे पास से जाना चाहोगे। बशर्ते कि 8 साल तक उजरत पर मेरे पास रहोगे, उसके बाद अगर तुम 10 साल पूरे कर दो, तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। मेरा इसमें कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हें मुशक्कत में डालूँ। इंशाअल्लाह तुम मुझे इन लोगों में पाओगे मिनस सालिहीन, जो भलाई का मामला करते हैं। समानिया हिजज, मैं आपको अपने पास जो जॉब पे रखूँगा, 8 साल होंगे, जिसकी मैं आपको पेमेंट करूँगा। अंत अजूरनी, मैं पेमेंट आपको करूँगा। सामान्य हिजज, 8 सालों की मैं आपको पेमेंट करूँगा। फ़इन अतममत अशरा, और अगर आप 10 साल मेरे पास पूरे करते हैं, फ़मिन इंदिक, मेरे पास, तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, और अगर आप इन सालों में, इन 10 या 8 सालों में मेरे पास रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आप मुझे एक बेहतरीन शख्स पाएँगे, और मुझे ऐसा पाएँगे, उन लोगों में से पाएँगे जो भलाई का मामला करते हैं, जो सालिहीन हैं, जो भलाई का मामला करते हैं। तो तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला, इन्होंने कहा ज़ालिका, ये बात, क़ाला ज़ालिका, इन्होंने कहा ये बात बैनी व बैनिक, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो चुकी है। ये जो आप सारी मेरे से बात कर रहे हैं, क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनिक, ये बात, ये सारी जो डीलिंग है मेरे और आपके दरमियान तय हो चुकी है। अजमल अजलैनि क़ज़ैतु फला उद्वान अलैहि वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है। दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूँ, तो मुझ पर कोई ज़्यादती ना होगी। चाहे मैं 8 साल रहूँ, चाहे मैं 10 साल रहूँ, तो मुझ पर कोई ज़्यादती ना होगी। जो बात हम कर रहे हैं, अल्लाह उसका रखवाला है। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और अल्लाह इस चीज़ का गवाह है, और अल्लाह इस चीज़ का रखवाला है। अब जिस औरत के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, ये वही ख़ातून थी, ये वही लड़की थी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी। इनका नाम सफ़ूरा था। और फिर जो ये मोस्टली जो तफ़सीर की बुक्स हैं, उनमें सफ़ूरा मिलता है, बाकी वल्लाहु आलम एग्ज़ैक्ट नेम ये था या नहीं, वल्लाहु आलम। जो ख़ातून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई, उनका नाम सफ़ूरा था, और फिर इन्हीं से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। घर में एक ऐसे मर्द की ज़रूरत थी, जो कि घर के बाहर के कामों को भी देख सके, और औरतों को बकरियाँ चराने, उन्हें पानी पिलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि आप इन्हें काम पर रख लें और उनको बाकायदा उजरत दें, इनकी उजरत तय कर दें। अब उनकी बेटी ने अपने बाप को ये मशवरा दिया कि आप इनको बाकायदा उजरत दें। और खातून का ये जुमला है कि आप किसी से उजरत पर काम लें, तो इनके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी हो। उनकी कमाल अक्लमंदी का सबूत है, अल्लाह ताला ने उनको
اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز واضح کر دی کہ ملازمت کے فیصلے کے لیے بہترین معیار عطا فرما دیا کہ ایک اچھے ملازم میں یہی دو بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں وہ ان کو بجا لانے کی جسمانی اور ذہنی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کسی کو کوئی رسپانسبلٹیز دی جا رہی ہیں تو اس میں اتنی طاقت، ذہنی اور جسمانی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ان کو پرفارم بھی کر سکے۔ اور دوسرا یہ کہ امانت دار ہو۔ خاتون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں کوالٹیز نظر آئی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں، جسمانی طور پر بھی طاقتور ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ذہین بھی ہیں۔ یہ ان دونوں چیزوں کا تجربہ ان خاتون کو ہو چکا تھا۔ پانی پلانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار فرمایا، ایک نہایت بھاری پتھر کو ہٹا کر کنویں سے پانی نکالا، یہ ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کی دلیل تھی۔ اور جہاں تک امانت داری کا تعلق ہے، ان کو تجربہ اس طرح سے ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتون کے ساتھ چلنے لگے تو ان سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہیے اور راستہ بتاتی جائیے تاکہ ان کی شرم و حیا اور عفت و عصمت کا پورا احترام ہو۔ اس قسم کی امانت چونکہ کم دیکھنے میں نظر آتی ہے، اس لیے وہ سمجھ گئیں کہ یہ امانت دار بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک صاحبزادی کا تعین نہیں کیا تھا، لیکن جب باقاعدہ نکاح ہوا تو متعین کر کے معروف طریقے سے ان کا نکاح ہوا۔ اور اجرت پر کام کرنے سے مراد بکریاں چرانا تھا۔ بہت سے فقہ اور جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام خود نہیں چراتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی کا جو حق مہر مقرر ہوا تھا وہ یہ حق مہر مقرر ہوا ہو۔ اس کے بارے میں اشکال بھی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے ڈفرینٹ روایات بھی ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ تو یہاں پہ ایک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ رکوع جو ہے وہ کل ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔